Good morning, dear student. We have started The Lost Child, a very heart touching lesson yesterday, and I have told you about how the child was going towards the fair. The child was full of excitement, full of joy, so he was attracted by everything on the roadside, and he whatsoever he noticed, he stopped himself there. His parents used to call him again and again to get together. So, in your test exam, when you will see the MCQs, definitely you will face some problem because I will put the question what were the things that attracted the child. First of all, at second, at third, okay, and after reaching in the fair, the first thing that attracted the child, it was Barfi, because Barfi was his favorite sweet. Secondly, a garland of gulmohar. Why did the child not stop there waiting for his parents' answer? Because he knew very well that his father will say that the garland of gulmohar is very cheap. So without waiting his answer, he moved ahead. Now I am going to start the further. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. In the fair, there was a man who had a pole. Pole means bamboo. And what was the bamboo? What the bamboo had? It had yellow, red, green, and purple colored balloons. बैलून्स को आज भी हम देखते हैं तो आज भी हमारा मन करता है बैलून से खेलने का. And when the child noticed those colorful balloons, the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Means the child could not suppress to go towards those colorful balloons. He went towards the balloons, and what's happened? Overwhelming desire. Overwhelming desire means strong feeling, strong desire. Overwhelming means strong. अपने strong desire to possess means to have. उनको लेने की जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उसको क्रश नहीं कर पाया और वो सीधा उसके बैलून सेलर की तरफ चला गया. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम. बट ही नो वेरी वेल, बच्चा जानता था उसके पेरेंट्स उसको बैलून्स नहीं दिलवाएंगे. क्यों? बिकॉज दे वुड से he was too old to play with such toys. क्योंकि वो जानता था उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब वो इतना छोटा नहीं है कि वो बैलून से खेलेगा, अब तो बड़ा हो गया है इसलिए उसे बैलून नहीं चाहिए. So he walked on further. That's why without waiting any response, neither the child requested his parents to purchase the balloon for him. So he went away. आगे बढ़ गया बच्चा. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Snake charmer stood playing a flute. जो स्नेक चार्मर अपनी बीन बजा रहा था एक स्नेक को, किस लिए? विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट. कॉइल्ड मीन्स कुंडली मारना, गोल गोल घूमकर बैठ जाना. स्नेक वाज सिटिंग इन ए बास्केट इन ए राउंड मैनर. गोल चक्कर में बैठा हुआ था, कॉइल मारकर बैठा हुआ था, तो उसको बीन से उसको उठा रहा था. इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान.
while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Its head raised. तभी सांप ने अपना फन उठाया इन ए ग्रेसफुल बैंड, बहुत ही शानदार अंदाज में, बैंड में मुड़ा हुआ, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे स्वान होता है, उसकी जो गर्दन होती मुड़ी होती है स्वान की, हंस की, है ना, उसकी तरह से एकदम गोल. While the music stole into its invisible ears, उसके invisible ears, स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं, he is unable to hear, वो सुन नहीं सकता, but he can feel the vibration, तो बस या तो वाइब्रेशन को फील करता है वो, या केवल सामने ऑब्जेक्ट उसको नोटिस करता है. तो जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल की रिपलिंग होती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है केवल, इसी तरीके से उसके इनविजिबल ईयर्स ने उसको सिर्फ फील किया और वो अपने फन को उठाकर इधर उधर बैंड करने लगा, मूव करने लगा. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. लेकिन his parents had prohibited the child to hear or to listen music of a snake charmer, as they considered कि जो स्नेक चार्मर होते हैं बच्चों को उठाकर ले जाते हैं. इसलिए उन्होंने बच्चे के मन में यह डर बिठा रखा था कि बेटा नेवर गो टूवर्ड्स सच पर्सन, और ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए हमें. तो बच्चे ने फॉलोड दैट थिंग्स, ही प्रोसीडेड फर्दर, मीन्स ही वेंट अहेड, आगे बढ़ गया. देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट बड़ा सा झूला होता है मेले में, दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ वही लगती है. तो राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वो तेजी से दौड़ रहा था, घूम रहा था. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked and cried with dizzy laughter. उसमें झूले पर कौन बैठे हुए थे? मैन, वीमेन और चिल्ड्रन. और वो whirling मोशन, राउंड राउंड घूम रहे थे उसमें. श्रीक्ड, चीख रहे थे. क्राइड, चिल्ला रहे थे. विद डिजी लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे. झूले में बैठकर हमेशा ऐसे ही होता है. अपना जो डर लगता है जब वो जॉइंट व्हील ऊपर से नीचे की ओर आता है, हाँ, तब कैसा लगता है? तो उसमें क्या होता है? रनिंग ड्यू टू पैनिक, एक पैनिक अंदर लगता है कि हाँ. इसलिए टू अवॉइड सच फियर क्या करते हैं? उससे बचने के लिए क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, श्रीकिंग करते हैं, क्राइंग करते हैं. तो ये जो राउंड अबाउट था जिस पर डिफरेंट तरह के एनिमल्स बने हुए थे, एलिफेंट था, हॉर्स था, उस पर लोग बैठे हुए थे और वो बहुत तेज़ी से उसको मूव ऑन कर रहा था, घुमा रहा था. और लोग बार बार चक्कर लगा रहे थे, इसलिए वो डर रहे थे, इसलिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. अब seeing such thing, seeing that scenario, the child decided a thing. He made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. Now the child first time made a bold request. उसने बड़ी हिम्मत से कहा, मम्मा, पापा, I want to go on the roundabout. मुझे झूला झूलना है. पापा, मम्मा, मुझे झूला झूलना है. Now it was the bold request of the child. There was no reply, but there was no answer. He turned to look at his parents. बच्चे ने जब देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना हाँ का ना ना का, he turned to look at his parents, तो एकदम
ही टर्न बिहाइंड, पीछे घूमा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर बट ही वॉज बैडली शॉक्ड बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। अहेड ऑफ हिम, वहां उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. बच्चा थोड़ी सी दाईं तरफ गया, थोड़ा बाईं तरफ गया, आगे गया, पीछे गया, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं नहीं थे। There was only crowd. People were coming from hither and thither and nobody was caring. अब बच्चे का क्या हुआ? A full deep cry rose within his dry throat. उसका गला सूख गया, dry throat, घबरा गया था, उसका गला सूख गया, जोर से चीखा। And with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. जिस जगह वो खड़ा हुआ था वो सीधा वहीं भागा। मेरे मम्मी पापा वहीं होंगे जहाँ पर मैं खड़ा था, जहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा था। His eyes crying in real fear, डर गया था बच्चा और चिल्ला रहा था, मदर फादर, मम्मी पापा। Now he was crying. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। Hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. उसका जो फ्लश मीन्स रेडन, उसका चेहरा कैसा हो गया, रो रहा था। हॉट एंड फियर्स, डर से डर भी रहा था, रो रहा था। हिज फ्लश्ड फेस, का चेहरा लाल पड़ गया। वाज कन्फ्यूज्ड विथ फियर, कन्फ्यूज मीन्स ओवरटेकन, और पूरा डर के मारे बच्चा कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, hither and thither in all directions. Panic stricken, बच्चा बुरी तरह से डर गया। because we knew कि पेरेंट्स कहाँ गए मेरे। अब उसके लिए वो चार्म खत्म हो गया राउंड अबाउट का। अब he was only सेंट्रलाइजिंग हिमसेल्फ इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, बस केवल वहाँ अपने आप को सेंट्रलाइज किए हुए था और इधर उधर भाग रहा था। मम्मा पापा, मम्मी पापा तुम कहाँ हो, मदर फादर। ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स क्राइंग विद टीयर्स। बच्चा रो रहा था, रोते रोते पुकार रहा था, मम्मी पापा, मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड। अब जो उसकी येलो टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, जो उसकी पगड़ी थी येलो कलर की, वो अनटाइड खुल गई। एंड इस क्लॉथ्स बीकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो भी मडी, गंदे हो गए थे, उन पर डस्ट लग गई थी। बार बार बच्चा भाग रहा था, पब्लिक इधर से उधर मूव कर रही थी, बच्चा उनसे टकरा कर नीचे गिर रहा था, तो उसके कपड़े सब मडी हो गए थे। नोबडी वाज पेइंग अटेंशन इज वेल। कोई भी व्यक्ति उस रोते हुए बच्चे की चीख पुकार को नहीं सुन रहा था। ऑल ऑफ देम वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। So these are the heart-touching paragraph of the story. It shows जब बच्चे को एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स खो गए हैं, बिछड़ गया है पेरेंट्स से, तो उसका रिएक्शन क्या था। It shows here are the words. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear, panic striken. He ran to one side first, then to the other, hither and thither. In hither and thither means here and there. Hither means here, thither means there. In all directions, जिस सभी तरफ भाग रहा था, knowing not where to go. उसे पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है, बस चिल्ला रहा था, mother, father. He wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro means here and there. To and fro, this is an idiom. ये एक idiom है to and fro. तो इसका मतलब है इधर उधर, hither and thither के लिए हम कह सकते हैं to and fro. In a race of running for a while,
कुछ देर तक बच्चा इधर उधर घूमता रहा, भागता रहा, चिल्लाता रहा, मम्मा पापा मम्मा पापा। रेज ऑफ रनिंग मीन्स रनिंग ड्यू टू पैनिक, जो उसके अंदर डर बैठा हुआ था उसकी वजह से बच्चा इधर उधर भाग रहा था कि कैसे मुझे मेरे पेरेंट्स मिल जाएं। रेज ऑफ रनिंग, रनिंग इन पैनिक। फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। अब जितना बच्चा भाग सकता था लोगों की भीड़ में उसने कोशिश करी चीखने की, चिल्लाने की, बट लेटर ऑन ही डिफीटेड, ही वाज डिफीटेड, हार गया, चुपचाप खड़ा हो गया। और जो रो रहा था ना जोर जोर से, अब वो आवाज़ उसकी सोप्स सुबकियों में टर्न हो गई। पहले तो बेचारा वो टीयर्स वर रोलिंग आउट, रो रहा था, लेकिन अब आंसू बंद हो गए, लेकिन अब बच्चा सुबक रहा था। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. बच्चा वहाँ खड़ा हुआ था, देख रहा था मैन वुमेन आपस में हंस रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। सभी ने येलो कलर के कपड़े पहन रखे, जैसे कभी आप शांति कुंज में जाइए हरिद्वार तो शांति कुंज में सभी का ड्रेस एक सा होता है येलो कलर में ही। अब वहाँ पर आप अगर कहीं एक दूसरे से बिछड़ गए तो रियली इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड आउट। हालांकि मोबाइल फ़ोन्स ने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया, बट मोबाइल ना हो तो फिर हाउ विल यू लुक देम। तो इस तरह से बच्चा देख रहा था, कभी किसी के कुर्ते को पकड़ लेता था पापा, लेकिन वो पलट कर देख देते थे, अरे ये मेरे पापा नहीं है। लेकिन किसी भी पर्सन को, किसी भी मैन या वुमेन को उस बच्चे से कोई सिंपैथी नहीं थी। बच्चा उन सबको देख रहा था। ही रैन क्विकली अगेन, बच्चा फिर से एक बार आगे बढ़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, श्राइन मीन्स टेम्पल, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब की बार बच्चा किधर गया? एक श्राइन की तरफ, एक टेम्पल था, तो उस टेम्पल की तरफ बच्चा चल दिया। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। एक एक इंच पर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, एंड द एरिया वॉज फुल ऑफ कंजेस्टेड, बहुत कंजेस्टेड था। मीन्स देयर वॉज नो रूम, देयर वॉज नो प्लेस टू मूव, बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स। लेकिन छोटा बच्चा था तो उसने क्या करा, लोगों के पैरों के बीच में से होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, और वो सुबकियाँ जो उस बच्चे को आ रही थी, लिंगरिंग, रिपीटिंग, सो रिपीटिंग, अपनी सुबकियों में बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था, लिंगरिंग कर रहा था, रिपीट कर रहा था, मदर फादर। क्योंकि उसे पता था कि मम्मी पापा मेरे मंदिर भी जाते हैं, तो उसने सोचा हो सकता है मेरे पेरेंट्स मंदिर में चले गए हों। तो बच्चे ने जब वहाँ देखा तो मंदिर की ओर चल दिया, बट इट वाज ओवर क्राउडेड नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। लेकिन क्या हुआ कि एंट्रेंस गेट तक पहुँचते पहुँचते टेम्पल के वहाँ पर क्राउड और ज़्यादा थिक हो गई, ओवर क्राउड हो गया। मैन जोसड ईच अदर, लोग एक दूसरे को, जोसड मीन्स धक्का देना, टू पुश, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी सोल्जर्स, हैप्टी सोल्जर्स, तो हैवी मैन बड़े बड़े लोग थे, फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उनकी आंखें ऐसी थीं एकदम लाल हो रही थीं, एंड हैप्टी सोल्जर्स, और उनके कंधे बहुत चौड़े थे। ऐसे लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे वहाँ पर। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। अब बच्चे ने, बेचारे ने सोचा कि मैं इनके लोगों के पैरों के बीच में से, जैसे अब तक मूव करता हुआ आया हूँ जगह बनाकर, इसी तरह से इनके पैरों के बीच में से होता हुआ आगे निकल जाऊंगा।
but knocked to and fro by their brutal movements। लेकिन उनके जो ब्रूटल मूवमेंट्स थे, लोग वहाँ किसी की कोई केयर नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने क्या करा, इधर से उधर उस बच्चे को हिट कर दिया। तो बच्चा, नन्हा सा बच्चा, उन लोगों की जब उन्होंने हिट किया तो बच्चा बेचारा इधर से उधर गिरने लगा। He might have been trampled underfoot। Trampled means क्रश, कुचला जाना। वो वास्तव में क्या था कि ही वॉज अबाउट टू ट्रैम्पल्ड अंडर देयर फीट। लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाने वाला था वो। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। और तभी वो बच्चा पूरी ताकत से चिल्लाया। वो जानता था केवल उसके पेरेंट्स ही उसको बचा सकते हैं, बाकी कोई उसकी केयर नहीं करेगा। इसलिए हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, पूरी ताकत लगाकर बच्चा एकदम चीख पड़ा, मम्मा पापा बचाओ, मम्मी पापा बचाओ। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty। और उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे हम कहेंगे काइंड हार्टेड मैन। उसने उस बच्चे की चीख को सुना। स्टूपिंग मीन्स नीचे झुकना, बेंड विद ग्रेट डिफिकल्टी। उस भयंकर भीड़ में वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से नीचे की ओर झुका। लिफ्टेड हिम अप, उसने देखा बच्चा नीचे पड़ा हुआ है, लोग उसे ठोकर मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर उस बच्चे को उठाया, इन हिज आर्म्स, अपनी गोद में बच्चे को ले लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मेस। उस बाहर भीड़ में से लाने के बाद उन्होंने उससे पूछा, उस व्यक्ति ने, कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। लेकिन बच्चा अब पहले से ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा और केवल एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस। उसके पास दूसरा कोई आंसर नहीं था। द मैन ट्राइड टू सूद हिम। सूद मीन्स कंसोल, सांत्वना देना, काम डाउन करना। उस व्यक्ति ने उसे बहुत काम डाउन करने की कोशिश की बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। वो उसे राउंड अबाउट पर ले गया, झूले की तरफ ले गया। बेटा झूला झूलोगे, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, बेटा घोड़े पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। वो जेंटलमैन उस बच्चे को लेकर झूले पर गया, उससे पूछा बड़े प्यार से, बेटा घोड़े पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only sobbed। लेकिन बच्चा, उसके गले में केवल और कुछ आवाज नहीं थी, केवल एक ही साउंड थी, वो थी सुबह रहा था, जोर जोर से चिल्लाया, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए, मुझे नहीं झूलना, मुझे नहीं झूलना, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। सो दीज वर द थिंग्स। अब यहाँ आप देखेंगे वो स्नेक चार्मर दिया हुआ है, कॉयल बना रहा है, स्नेक की कॉयल देखिए आप। और हियर इज द जेंटलमैन, ये बच्चा जो रो रहा है, वो जेंटलमैन ने इस बेबी को उठाया अपने हाथ में। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो व्यक्ति उसे लेकर, the man carried the child towards the snake charmer and the snake charmer at that time was swaying cobra। Listen to that nice music child। तो उसने कहा, जेंटलमैन ने, बेटा देखो इस बीन की आवाज़ को सुनो। ही प्लीटेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। लेकिन बच्चे ने क्या करा, उसने अपने कान पर दोनों हाथ रख लिए और चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब वो बेचारा जेंटलमैन उसे बैलून सेलर के पास ले गया
इसने सोचा, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। उसने सोचा बैलून्स के जो ब्राइट कलर हैं उसे देखकर बच्चे का ध्यान बटेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा उसका अटेंशन, और उससे बच्चा क्वाइटन यानी शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? बेटा क्या तुम एक कलरफुल बैलून लोगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड। उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड। लेकिन बच्चे का रिएक्शन क्या था? उसने अपनी आंखें उन कलरफुल बैलून से घुमा दी, जिन बैलून्स के लिए वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अर्ज कर रहा था। उसके मन में बहुत इच्छा थी उसे बैलून को लेने की, लेकिन अब इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स उसने उसे इग्नोर कर दिया और केवल रोते हुए की बात कही, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो बेचारा जेंटल पर्सन उसे अब भी हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए, फिर इससे मैं पूछूंगा। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो उसे गोद में लिए लिए गेट पर, मेले के गेट पर पहुंचा जहां पर फ्लावर सेलर फूल वाला बैठा हुआ था। लुक बेटा देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? बेटा क्या तुम इन खुशबूदार फूलों को लोगे? विड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम एक गार्लैंड तुम्हें खरीद कर दूं, तुम उसे पहन लेना गले में अपने? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। लेकिन बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया। रेटरेटेड इज सो, और अपनी सुबकियों को फिर उसने चालू कर दिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे बर्फ़ी नहीं चाहिए, मुझे झूला नहीं चाहिए, मुझे स्नेक चार्मर नहीं चाहिए, मुझे केवल अपनी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा मिठाई बहुत पसंद करता है, तो उसे मिठाई वाले की दुकान पर लेकर जाता हूँ। उसे मिठाई की दुकान पर लेकर वो गया, लेकिन बच्चे ने उस मिठाई को देखकर ही मना कर दिया। केवल एक ही बात का, बोले मुझे सिर्फ मेरे मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। इन फैक्ट द चाइल्ड रिफ्यूजेस एवरीथिंग एंड वांट्स ओनली पेरेंट्स। इट शोज नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड देन इज पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। संसार में एक बच्चे को उसके माता पिता से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा गिफ्ट नहीं हो सकता। अच्छे बच्चों के लिए तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स ही सेकंड टू गॉड होते हैं। और वास्तव में दिस स्टोरी टीचेज अस अ ग्रेट मैसेज कि वास्तव में एक बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए कितनी वैल्यूबल होती हैं। सो हम अपने पेरेंट्स से एक मिनट के लिए अलग होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बेशक वी कैन इंगेज आवर सेल्फ इन वॉचिंग टीवी, इंजॉइंग इन मोबाइल फ़ोन, बट कितनी समय तक? एक समय बाद डेफिनेटली वी आर इन नीड ऑफ आवर पेरेंट्स। और जब हमें एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, उस समय हमें ये सारी चीज़ें यूजलेस लगने लगती हैं। सो रियली दैट लेसन इज़ वेरी हार्ट टचिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो केवल और केवल एक बच्चे के इमोशंस को शो करता है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन दैट इज ओवर। टुमारो आई विल स्टार्ट इट्स NCERT folder. Okay dear students, this is a very fine lesson written by Mulkraj Anand. Really enjoy the lesson very well. Okay, and have a nice day. I hate